It was just like any other day in my residency. I had just reached back home after finishing my hectic duty when I just received a text in the group and it said, all the residents are requested to come back to their duty for a mass casualty. So, what was that mass casualty? Let's find out. Hi everyone, I'm Dr. Kanika. And I'm Dr. Shivang. And welcome back to Dr. Duo. So normally हमारे emergency days की timings around 12 hours to 24 hours extend करती है and then we get a break for few hours जिसमें we sleep, we refresh ourselves. And मेरी उस समय night duty लगी हुई थी, I remember, and 6 AM तक मेरी duty finish होनी थी. And I was very happy कि final duty खत्म हो गई. I was preparing for the next day, जो थोड़ा off वाला day होता है. When जो हमारा सर्जरी का ग्रुप है उसमें टेक्स्ट आता है mass casualty. So what is mass casualty? Mass casualty basically जब a lot of people are expected, या lot of accident or some maybe earthquake or maybe a bus overturning or something like that is expected. So everyone has to be present there because इतना ज़्यादा rush हो जाता है patients का and casualties का कि just a few people or few unit cannot handle it alone. So you know what? This mass casualty was actually very different from what you all have heard. Actually the thing is, जो groom था, he started flirting with another girl while his barat was going on. His wife noticed this. Not only his wife, जो wife के brothers थे उन्होंने भी notice कर लिया कि यार ये तो किसी और के साथ अभी बारात में ही ऐसा कर रहा है. Then वो अचानक से पूरा अपना ग्रुप बना लिए. They all collected together, पूरा डंडे लाठी हॉकी स्टिक्स लेके आ गए एंड दोनों ग्रूम एंड ब्राइड के फैमिली साइड में आपस में लड़ाई हो गई. एंड इट वाज नॉट एनी ऑर्डिनरी फाइट, मतलब प्रॉपर हॉकी स्टिक्स ऐसे लड़ाई करे. जब वो हमारे हॉस्पिटल में आए, आई टेल यू व्हाट द सिनेरियो वाज. अराउंड 30-40 लोगों की भीड़, सब बारात वाले कपड़े. जस्ट इमेजिन, ग्रूम अपनी पूरी शेरवानी में पहना हुआ है, रेड कलर की शेरवानी और उसी में रेड कलर के ब्लड के स्टेन्स. ब्राइड वो भी आ रही है, उसके भी किसी ने सर पे मार रखा है. पूरी फैमिली मेंबर्स सब एकदम शादी वाले क्लोथ्स में एंड सब एक दूसरे से लड़े पड़े हैं. एंड हम लोग को आके दोनों एज ए फीवर द जज हमको अपनी कन्विंसिंग बता रहे हैं कि यार दे आर रॉन्ग बिकॉज दे डिड दिस, वी आर रॉन्ग बिकॉज दे डिड दिस. The best thing about this was कि फीमेल्स ने स्टैंड लिया. फीमेल्स आई ने ये नहीं कि चुपचाप बैठ गई इस बात पे, which obviously the male side did wrong only. So after all this which happened, काफ़ी लोगों को हेड इंजरीज हुई, अदरवाइज फ्रैक्चर्स हुए और थोड़ी मोड़ी माइनर वुंड्स ये सब हुआ. So all of them rushed to the emergency as Shivang told, and then मेजर all थिंग the हमने क्या teams. किया कि दोनों को सेग्रीगेट कर दिया कि भाई अगर यहाँ पे भी लड़ाई शुरू कर दी तो फालतू का न्यूसेंस क्रिएट हो जाएगा. लेट मी टेल यू, काफी सीरियस इंजरीज भी हुई थी. एक बंदे का पूरा हेड वाज टोटली टॉर्न एंड उसके स्कल वाज टोटली विजिबल. लाइक दीज केसेस आर वेरी कॉमन इन एक्सीडेंट्स, बट शादी में ऐसे केसेस आर नॉट कॉमन एट ऑल. प्लस देयर वर 2-3 फ्रैक्चर्स. एक को चेस्ट पे इतना मारा था, बस उसको फ्लेल चेस्ट नहीं हुआ. So flail chest means when 2 or more ribs are broken at 2 or more places. So मतलब we can detect it clinically also and on X-ray also. This was a very different case which I wanted to share. कि not all the emergencies we get are due to accident, road traffic accidents or maybe fall from height. These are the most common ones. But ऐसे कुछ different type के cases भी आ जाते हैं and they are like kind of funny also at that time because especially जब वो आपस में उस समय भी लड़ के भिड़ के उस समय बता रहे होते हैं. But of course they are very distressing physically also because बहुत trauma and damage हुआ होता है. We were very afraid कि किसी को blunt trauma abdomen भी ना हो गया, but luckily जिनको हुआ भी था they didn't require any surgery. मैक्सिमम सर्जरीज हुई थी वो स्कल में और जितने सबको हेड इंजरीज हुई थी उसी के लिए लगी थी. सेकेंडली ऑब्वियसली मेंटली भी बहुत ज़्यादा ये टॉर्चरस होता है फॉर बोथ द साइड, प्लस अ ब्रोकन फैमिली. Exactly. And also ortho team was also involved, surgery Everyone वाले was भी involved. और कौन थे? ENT वालों को बुलवाना पड़ा था बिकॉज ऑब्वियसली जब हेड इंजरी होती है तो कई केसेस में ऐसा होता है कि ब्लीडिंग फ्रॉम द ईयर्स, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डैमेज एंड ऑल. मतलब यू कैन इमेजिन प्रॉपर एक ब्रॉल हो गया था यार. प्रॉपर एक ट्राइएज वाला सिचुएशन हो गया था. एंड में हमने उसको सक्सेसफुली मैनेज किया. देयर वाज नो मोर्टेलिटी एंड एडमिट भी मैक्सिमम आई थिंक 4-5 डेज तक हुए थे. अराउंड 10 to 12 पीपल. बाकी तो हमने सेम डिस्चार्ज कर दिया था. बट दिस वाज वन इंसिडेंट व्हिच रिमेन्ड इन आवर हार्ट्स एंड आई वांटेड टू शेयर इट विद यू ऑल. So sometime just as they say कि राई का पहाड़ बनना, ये वो चीज हो गई. एंड ऑफ कोर्स मेरी जो इमरजेंसी ड्यूटी पोस्ट जो ब्रेक था वो भी खत्म हो गया क्योंकि फिर नेक्स्ट नाइट मेरी फिर इमरजेंसी स्टार्ट हो गई थी. इसके चक्कर में पूरा 36 आवर्स का एक शिफ्ट बन गया था मेरा. तो remember this thing that whenever you're doing anything, actions really matter. कुछ भी हो सकता है. So this is one of the cases. If you like and if you want more cases के बारे में ऐसे डिस्कस करें, do subscribe and also comment down and we'll make more such videos. Bye.